زین علی شاہ جو کوآرڈینیٹر ہیں یوتھ ونگ کے، وہ خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اس عظیم و شان یوتھ کنونشن میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پورے ضلع ملتان، تحصیل شجاع آباد، تحصیل جلال پور کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ آئے ہمارے معزز مہمان مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت اور سٹیج پہ بیٹھی مقامی قیادت، سب کو میں ویلکم کرتا ہوں شجاع آباد کی سرزمین پہ۔ میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی، آپ نے اس یوتھ کنونشن کے لیے شجاع آباد کو سلیکٹ کیا، شجاع آباد کو چوز کیا۔ شجاع آباد آپ کا بے حد مشکور ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عظیم و شان یوتھ کنونشن کا اثر انشاءاللہ پورے جنوبی پنجاب پہ پڑے گا، اور میں آپ سب سے یہاں موجود ہر ایک میرے دوست سے، بھائی سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اب ہم دگنی محنت کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے، محترمہ کو پرائم منسٹر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے، کھڑے ہو کے جھنڈے لہرا کے ہاتھ اٹھا کے استقبال کیجئے گا۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہماری چیف آرگنائزر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو۔ اور مجھے یاد ہے 12 اکتوبر 1999 جس دن مشرف نے پاکستان پہ شب خون مارا تھا، اس دن بھی نواز شریف صاحب شجاع آباد میں آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ میں سے تو زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے ماشاءاللہ۔ جاوید علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ہاتھ کھڑا کرائیں۔ جو 25 سال سے کم عمر ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ نہیں یہ بند کریں ابھی۔ اچھا سچ چیٹنگ نہیں کرنی، چھوٹا نہیں بننا۔ جو 25 سال کے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ چلو جو ذرا 35 سال کے لگ بھگ ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، اور 40 سال سے اوپر کون ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں۔ بھئی 25 پہ بھی ہاتھ کھڑے ہیں، 35 پہ بھی کھڑے ہیں، 40 پہ بھی کھڑے ہیں، لیکن مجھے زیادہ تعداد نوجوانوں کی نظر آ رہی ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ پاکستان کا مستقبل ہو، اس لیے میں چل کے آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جو 1999 میں پیدا نہیں ہوئے، کچھ چھوٹے تھے، کچھ بزرگ ہیں جن کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب 12 اکتوبر کو جب ان کی حکومت ان سے چھینی گئی تو نواز شریف صاحب شجاع آباد میں تھے، اور 2/3 اکثریت رکھنے والا وزیر اعظم جب شجاع آباد سے اسلام آباد پہنچا تو وہ مسنگ پرسن ہو گیا۔ اس کے 40 دن کے بعد تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ نواز شریف کس حال میں ہے، لیکن شجاع آباد والوں، نوجوانوں، مجھے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، نواز شریف کی حکومت 99 میں بھی ختم کی گئی، اس کو اٹک قلعے کے زندانوں میں پھینکا گیا، اس کے ہاتھ ہتھکڑیوں کے ساتھ جہاز کی سیٹ سے باندھے گئے، اس کو 2 بار عمر قید کی سزا ہوئی، جلا وطنی کاٹی۔ 2017 میں بھی حکومت ختم کی، لیکن کیا ایک بار بھی نواز شریف نے کہا کہ فلاں چیز کو آگ لگا دو، فلاں چیز کو توڑ دو؟ کبھی ایک بار آپ کی قیادت نے کہا کہ پتھر مارو اور شیشہ توڑ دو؟ کیا آپ کی قیادت نے کہا کہ اپنے ملک کو جلا ڈالو؟ جو ملک بناتا ہو، جو ایک ایک اینٹ جو
کے ملک بناتا ہو وہ ملک جلا سکتا ہے؟ درد تو اسی کو ہوگا نا جو اس مٹی کا بیٹا ہے، جس نے ایک ایک اینٹ کر کے اس ملک کو تعمیر کیا ہے، اسی کو اس ملک کا درد ہوگا نا۔ اور بڑی دفعہ ظلم کا مقابلہ کیا، لیکن گھراؤ جلاؤ انتشار کی ترغیب نہیں دی، یہی کہا کہ یہ ملک آپ کا ہے، آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے، آپ کو اس کو سنوارنا ہے۔ جمہوری جد و جہد سے ظلم کا انتقام کا سامنا کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بار بار چھینی ہوئی حکومت واپس چھینی۔ اب بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ شجاع آباد والوں، جن ہاتھوں نے میٹرو بس بنائی ہو، کیا وہ میٹرو بس جلا سکتے ہیں؟ جن ہاتھوں نے ایکسپریس ویز، موٹر ویز، سڑکیں تعمیر کی ہو، وہ سڑکیں توڑ سکتے ہیں؟ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے دہشت گردی ختم کی ہو، وہ دہشت گردی کر سکتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسپتال تعمیر کیے ہو، کالج اسکول تعمیر کیے ہو، وہ ان کو آگ لگا سکتے ہیں؟ جو ہاتھ یہ ملک تعمیر کر سکتے ہیں، وہ ہاتھ یہ ملک نہیں توڑ سکتے۔ اور یاد رکھو، وہ ہاتھ اس ملک کو توڑنے والوں کو توڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ودا میں جب شیر آئے گا، اور دوسری طرف دیکھو، اقتدار کیا ہاتھ سے گیا، اس کی اصلیت کھل کے قوم کے سامنے آ گئی، اپنا ملک جلا دیا۔ اقتدار جانے کا اتنا صدمہ تھا کہ اپنے ملک کو آگ لگا دی، شہداء کی یادگاریں جلا دی۔ اس دن بولو، ایک قوم بن کے جواب دو، اس دن دل خون کے آنسو رویا تھا نا؟ رویا تھا نا؟ 9 مئی کو جب شہداء کی یادگاریں جلائی گئیں، جب ان کے مجسمے توڑ کر ان کو لاتوں سے مارا گیا، بتاؤ دل خون کے آنسو رویا تھا نا؟ کیونکہ شہداء فوج کے نہیں ہوتے، شہداء پوری قوم کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے جان دی ہوتی، اس ملک کی مٹی کی حفاظت کے لیے جان دی ہوتی ہے۔ تو پاکستانیوں، ایک عہد کرو کہ جس نے شہداء کی توہین کی، پاکستانی قوم اس کو نہیں چھوڑے گی۔ کوئی اور نہیں بس شیر، تقدیر کا دھارا میں شجاع آباد والوں، مجھے شہداء کے خاندانوں میں لوگوں کے فون آتے ہیں، مجھے میسیجز آتے ہیں۔ وہ عطا طارڑ صاحب گئے کرنل شیر خان کے بھائی سے ملنے، اس نے کہا کہ ایک شہادت ہی ہمارا اثاثہ تھی، اس کو بھی جلا کے راکھ کر دیا۔ اور پھر ایسے منحوس لوگ ہیں، پتہ نہیں کس کے بھیجے ہوئے، کس کے کارندے ہیں، کس کے نمائندے ہیں۔ انہوں نے مرے ہوئے جانوروں کی تصاویر شہداء کی تصاویر کے ساتھ لگا کر کہا ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ دل خون کے آنسو روتا ہے وہ سب دیکھ کر۔ آباد والوں، مجھے ایک قوم بن کے جواب دینا، جنہوں نے شہداء کی بے حرمتی کی،
जिन्होंने शुहदा की अलामतों को, उनकी यादगारों को आग लगाई, क्या वो किसी रहम के मुस्तहिक हैं? क्या वो किसी नरमी के मुस्तहिक हैं? क्या वो किसी रियायत के मुस्तहिक हैं? क्या वो किसी माफी के मुस्तहिक हैं? वो ना किसी रियायत के मुस्तहिक हैं, ना किसी रहम के मुस्तहिक हैं, ना किसी माफी के मुस्तहिक हैं। और कान खोल के सुन लो शुहदा की तौहीन करने वालों, ये कौम तुम्हें इंशाअल्लाह ताला आखिर तक तुम्हारा पीछा करेगी और तुम्हें चैन से रहने नहीं देगी। सीधा रास्ता वतन आई है, ये कसम आई है बाखुदा, सुने दुश्मन सभी के वतन है सदा, हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, मंसूबे का मास्टरमाइंड जमान पाक में छुप के बैठा है, और जब उससे सवाल किया जाता है तो कहता है मुझे क्या पता, मेरे कारकुनों ने कर दिया होगा। जब मुश्किल वक्त आया, जब जराइम का जवाब देना पड़ा, तो कारकुनों को बस के नीचे फेंक दिया और कहा कि इन्होंने किया जो किया, मैंने कुछ नहीं किया। शर्म आनी चाहिए इस इंसान को अपने आप को लीडर कहते हुए। लीडर अपने सीने पे मुश्किलात झेलते, अपने कारकुनों पे आंच नहीं आने देते। लीडर वो होते हैं जो बेटी का हाथ पकड़कर जेल जाते हैं, लेकिन कारकुनों को आंच नहीं आने देते। और मैं शुजाबाद के नौजवानों से मुखातिब हूं और पाकिस्तान के नौजवानों से मुखातिब हूं। अपने लिए, इसके बच्चों के लिए लंदन का महफूज मकाम, और पाकिस्तानी कौम के और इसके कारकुनों के बच्चों के लिए जेलें और दहशतगर्दी की अदालतें। ऊपर से शर्मनाक बयान देता है, कहता है ये मुल्क मेरे बच्चों के लिए महफूज नहीं है। इंटरव्यू दे रहा था, मेरा सर शर्म से झुक गया। कहता है ये मुल्क मेरे बच्चों के लिए महफूज नहीं है। तो इस मुल्क को गैर महफूज बनाने वाले सबसे बड़े फितना और इंतशार तुम खुद हो। जवानों, इसने इस मुल्क को आग लगाई इसीलिए थी क्योंकि इसके बच्चे इस मुल्क में नहीं रहते, इसके बच्चों को खतरा नहीं है, इसलिए इसने इस मुल्क में आग लगाई थी। और कौम के बच्चों के हाथों से किताबें लेकर, उनके हाथों से लैपटॉप्स लेकर, उनके हाथों से उसका मुस्तकबिल लेकर, इसने उनके हाथों में माचिस और तीली और पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ा दिए। कि नौजवानों बोलो, क्या यही है आपका मुस्तकबिल? क्या आप अपने मुल्क के नौजवानों को इस तरह देखना चाहते हो? और जब इसके वरगलाए हुए, उकसाए हुए नौजवानों ने जब फौजी तनसीबात को आग लगाई, उनको दहशतगर्दी की अदालतों में पकड़ा गया, वहां लेकर जाया गया, वो बच्चे वहां रुल रहे थे और ये वहां से ट्वीट कर रहा था बैठा कि मुझे अपने बच्चों के साथ शुमाली इलाका जात की शहर बड़ी याद आ रही है। कारकुनों के बच्चे बे यारो मददगार तुम्हारे वरगलाए हुए, तुमने उनके ज़हनों और दिमागों में बारूद भरा, वो आज रुल रहे, उनके माँ बाप रुल रहे अदालतों में। किसी को 10 साल कैद हो रही है, किसी को 20 साल कैद हो रही है, और इसके बच्चे आराम से बाहर बैठे हैं। शुजाबाद का नौजवान पूछता है, कौम का नौजवान पूछता है कि जरा दो ना कासिम और सुलेमान के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब दो ना, जरा कासिम और सुलेमान को भी जिस तरह कौम के बच्चों को वरगलाया था, दहशतगर्दी की तरगीब दी थी, जरा कासिम और सुलेमान को भी कहो जाओ माचिस लेकर जाओ और आग लगाओ किसी जगह को। तकलीफें मेरी कौम के नौजवानों के लिए अपने बच्चे महफूज मकाम पे बैठा के रखें। और तकब्बर में शुजाबाद वालों, सुन रहे हो ना मेरी बात?
इधर भी सुन रहे हो ना? वो जो खवातीन बैठी है सुन रही है ना? तकब्बर और रऊनत में 2 दावे किए थे, 2 दावे किए थे। कहता था मैं इनको रुलाऊंगा। क्या कहता था? मैं इनको रुलाऊंगा। आज मुस्लिम लीग नून को रुलाने वाला वो सारे बाजमात धाड़े मार मार के रो रहे हैं। डरता था, जेल से इसकी इतनी जान जाती थी कि इसने कहा अगर मुझे जेल हो जाए तो तुम लोग निकलना और फौजी तंसीबात पे आग लगा देना। फिर इसने सोचा कि 9 मई को मैं अफवाजे पाकिस्तान को झुका लूंगा, मेरी बड़ी वाह वाह हो जाएगी। निकला उनको झुकाने के लिए, लेने के देने पड़ गए, वो चाल उल्टी पड़ गई। और आज जिनको झुकाने निकला था, रोज शाम को YouTube पे बैठ के उनसे मुलाकातों की भीख मांग रहा होता है। 9 मई को उनको जलाने निकला था, उनकी तंसीबात को जलाने निकला था, फौज के खिलाफ मुसल्लह बगावत के लिए निकला था। और 9 जून को हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहे कि मैं तो अस्करी क़यादत से बात करना चाहता हूं, मुलाकात करना चाहता हूं, मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा। तो बंदा पूछे, तकब्बर और गरूर का सर नीचा होता है, अब खुदा याद आया? शुजाबाद वालों, खुदा याद आता है ना? लाख लाख आपके जज बिके हो, लाख आपका चीफ जस्टिस तराजू को बिल्कुल उल्टा करके बैठा हो, अल्लाह ताला का निजाम हरकत में आके रहता है। शुजाबाद वालों, हरकत में आके रहता है। शेर आएगा। कोई और नहीं बस शेर। जो दावा करता था कि मुस्लिम लीग नून को तोड़ दूंगा, तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साथ यूं मुट्ठी की तरह, बंद मुट्ठी की तरह खड़ी रही। मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। ये मेरे इर्द गिर्द जितने भी MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स बैठे, कोई एक भी नवाज शरीफ को छोड़कर नहीं गया। और खुद की जमात का क्या हाल हुआ? मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले की जमात का क्या हाल हुआ? आज इतनी सी जमात रह गई है कि एक चिंची में भी पूरी आ जाएगी। इरशाद की अपने दुआएं देता है वतनकार गरीब, दुआएं देता है वतनकार गरीब। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों। जमात जितनी रह गई है वो एक चिंची में भी पूरी आ जाएगी। जमात का सदर भी कुछ खुद ही है, जमात का जनरल सेक्रेटरी भी खुद ही है, जमात का क्या कहते हैं चीफ ऑर्गेनाइजर भी खुद है, जमात का स्पोक्स पर्सन भी खुद है, जमात का उम्मीदवार भी खुद है, जमात का वोटर भी खुद है। इंशाअल्लाह इसको वोट डालने भी अब कोई नहीं निकलेगा। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। इस्लामाबाद वाले शेरों, आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं टूटी। क्योंकि हकीकी अवामी जमात है, क्योंकि नवाज शरीफ हकीकी अवामी लीडर है, खिदमत की हुई है इस मुल्क की, इस मिट्टी का बेटा है। कोई जाली मैंडेट नहीं था, कोई जाली वजीर आजम नहीं था, कोई जाली इलेक्शन नहीं था, कोई जाली जमात नहीं थी। जो कहता था 26 साल की मेहनत करके मैंने जमात बनाई है, तो 26 मिनट के अंदर वो जमात जो है वो किरची किरची हो गई। को लाया है वो करीब
के दिलों की धड़कन जिसको कहता था जिसके जहाज में जमात बनी थी उसी के जहाज में वापस गई है ये जमात। तो शुजाबाद वालों, अब तो इन्होंने कोशिश तो की थी 9 मई के सानहे में, बड़ा तकलीफ दे वाकया था, लेकिन अच्छा हुआ कि मुल्क का दुश्मन पहचाना गया। तो अब फितना, फसाद और तबाही का चैप्टर क्लोज हुआ। अब इंशाअल्लाह ताला यहां से तरक्की का सफर शुरू होगा। अब छोड़ो इस फितने को, ये दफन हो गया इंशाअल्लाह। अब आओ बात करते हैं आपकी तरक्की की, अब आओ बात करते हैं पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की, अब आओ बात करते हैं मोहब्बत की, दिलों को जोड़ने की, पाकिस्तान की खिदमत करने की। इन मुश्किल हालात में भी आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार ने बेहतरीन बजट पेश किया इन मुश्किल हालात में भी। और अभी IMF नहीं आया, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। बोलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आगे इनका मुस्तकबिल इनके हाथ में हमने डंडे नहीं पकड़ाने, इनके हाथ में हमने इंशाअल्लाह ताला रोजगार पकड़ाना है। इनके हाथ में हमने पेट्रोल नहीं देना, इनके हाथ में, आपके हाथों में हमने हुनर देना है। ये मुल्क, शुजाबाद वालों, ये मुल्क एक ज़राई मुल्क है। हमारी इकॉनमी ज़राअत पे ज्यादातर चलती है। तो मेरा ख्वाब है वो पाकिस्तान जहां ज़राअत के लिए पूरी दुनिया से ढूंढ कर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्निक्स पाकिस्तान में लाई जाए, क्योंकि हमारा किसान को तरक्की करनी चाहिए। और शुजाबाद को लाहौर की तरह होना चाहिए। धरने के बाद धरने पे सब साजिशी नाकाम हुई, ऐसी उल्टी दस्तूर है खिदमत यहाँ। मैं वो शुजाबाद चाहती हूं जहां जब आप पढ़ के निकले तो आपको नौकरी करने लाहौर ना जाना पड़े, जब आपको अच्छी तालीम हासिल करनी हो तो आपको लाहौर या कराची ना जाना पड़े, जब आपको अच्छे अस्पताल की जरूरत पड़े, अल्लाह ना करे आपको अस्पताल की जरूरत पड़े, तो आपके शहर के अंदर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मौजूद हों। और मैं ये चाहती हूं कि आपका मुस्तकबिल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक हो। हमारी कौम के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतने अच्छे दिमाग हैं हमारे नौजवानों के, इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, लेकिन यकीन करो जो एप्लीकेशन बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, उसको एक्सपोर्ट करने की बजाय वो बेचारा दफ्तरों के चक्कर लगा रहा होता है कि सॉफ्टवेयर खरीदने वाला कोई नहीं। तो मैं ये चाहती हूं कि आप लोगों को ना सिर्फ ये कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना बिजनेस बनाने के लिए कर्जे मिले, बल्कि आपका हाथ पकड़कर आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाया जाए। और इंशाअल्लाह ये होगा। इंशाअल्लाह अगले 5 साल मुस्लिम लीग नून को अल्लाह ताला ने और आपने मौका दिया तो इंशाअल्लाह सिर्फ पंजाब की नहीं पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। ये मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह। कोई और नहीं बस तकदीर का धारा पे, कोई और नहीं बस तकदीर का धारा पे, बातिल को हम शुजाबाद वालों, अच्छे दिन आने वाले इंशाअल्लाह ताला। ये शाकिर शुजाबादी इधर से ताल्लुक रखते थे, मुझे बहुत उनकी शायरी पसंद है। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। कहते थे दुआ शाकिर तू मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने। और मैं ये कहना चाहती हूं, मैं पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत शुजाबाद की और मुल्तान की
तमाम MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स, तंजीमी उहदेदारान और आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। यूथ के ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं सबका नाम लेकर शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन उसको 15 मिनट लग जाएंगी क्योंकि नामों की फहरिस्त बहुत तवील है। लेकिन आपको पता हो कि आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हो। आखिर में एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ आपकी जबान में। मेरी जबान मुझे सराइकी बहुत पसंद है, मुझे बहुत प्यार है सराइकी से। मैं कहती हूँ कि अब फितना इंतशार इख्तिताम को पहुंचा तो इंशाअल्लाह हुन थी फरीदा शादवल, मेरे पीछे बोलो, हुन थी फरीदा शादवल, चौका थीन आबादवल। इंशाअल्लाह शुजाबाद की झोंकें, शुजाबाद के घर, मुल्तान के घर, इंशाअल्लाह पाकिस्तान शाद और आबाद रहेगा। जलालपुर वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर किसी का नाम मैं नहीं ले सकी उसका भी शुक्रिया। शुजाबाद वालों, आपकी मोहब्बत और शफकत का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे। मेरे साथ मिलकर नारा लगाना है, नवाज शरीफ, और शुजाबाद का नारा भी लगा दो, शुजाबाद। और ऐसे आप पाकिस्तान हमारा मुल्क है, अल्लाह इसको अपनी हिफाजत में रखे, फलता फूलता रखे। तो ऐसा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना चाहिए कि जो इस फितना और इंतशार को हमेशा के लिए पाकिस्तान से खत्म कर दे। तो नारा लगाना मेरे साथ मिलकर, पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।